Now I am going to discuss the effective value or RMS value of the alternating current और alternating voltage. एंड बोलचाल में उसको AC करंट और AC वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन अगर वैसे उसको एब्रिविएशन करेंगे तो AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट ऑलरेडी होता है, इसलिए हम अगर स्ट्रिक्टली कहेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलेंगे, लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं AC करंट AC वोल्टेज. फॉर दिस सपोज there is a resistor of resistance R and a source of AC is applied and AC current will flow through this resistance, and the source is the V is equal to V naught sin omega t, and this value is the peak value and this is the V naught, and this is the instantaneous value of the voltage. It value will be 0 at any instant, it will be maximum, here again 0, negative direction maximum, it may be 1, and it depends on the time. So this is the instantaneous value of the voltage. And then the instantaneous value of current I have also seen in the previous class is I is equal to V by R, and it is equal to V naught sin omega t by R, and it is equal to I is equal to V naught by R is I naught sin omega t, and suppose this is the value of current and this is the peak value of current. Now since the value of current will change continuously, then the question is that what is the heat produced in this resistor, or we can say that the energy dissipated in the form of heat, यानी कि हीट के फॉर्म में एनर्जी कितनी बेस्ट होती है, वो अगर पता लगाना है तो हम क्या लगा सकते हैं, पावर जो होता है दैट इज दी heat dissipated per second, that is the power, means power is the dissipated power, and it is equal to I squared R, and you read it in the heating effect of current, and this is the value of the current, but here in this AC the I is not constant, it will change continuously in direction and magnitude. So now for this, here the P is I naught sin omega t square R, and this P is equal to I naught square sin square omega t R, and thus we can say that this power is different and different instant because it is the function of time. For so we have to calculate the average power. So this average power is, average can be written by putting the bar, this is the average power, and so here R is constant and I square naught is constant, so I square naught R, and this is now the average value of sin square omega t has been required. इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी कि sin square t की वैल्यू क्या होगी. Now the by the trigonometry, you know that the sin square omega t is equal to 1 minus cos 2 omega t by 2. ये आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन आइडेंटिटी है. And putting this value here, this is the
I naught square R and average value of 1 minus cos 2 omega t by 2, and it is the I naught square R by 2 and the average value of 1 minus cos 2 omega t, but this I naught square R by 2 now this is the 1 minus average value of cos 2 omega t, क्योंकि 1 हमारा कांस्टेंट है इसलिए 1 तो एवरेज वैल्यू भी 1 ही होगा। अब इस cos 2 ओमेगा 2 का एवरेज वैल्यू चेक करता हूं मैं, क्या हो सकता है। एक फंक्शन है cos ओमेगा t, तो एक पूरी टाइम पीरियड t में मीन्स एक कंप्लीट साइकिल में जिसमें कंप्लीट वेरिएशन होता है, ये जो वैल्यू होगा cos 2 ओमेगा t dt divided by capital T, and this is the 1 by t and integration of this is the average value of cos omega. This is the average value of cos 2 omega t. The cos 2 omega t is the sin 2 omega t by 2 omega and 1 by t into 2 omega 0 to t sin 2 omega t minus sin 2 omega into 0, it is 2 omega t sin omega is 2 pi by capital T into t minus sin 0, dt is cancelled, so sin 4 pi 2 omega t, the value of sin 4 pi is 0 and sin 0 is 0, so 0 minus 0 is 0, so it is 0. So thus the average value of the cos 2 omega t is 0. Hence the average power is, average power means by the symbol is, it is equal to I square naught R by 2 and this value is 0, so 1 multiplied by 1 is this here, this is the average power. तो एक AC में एवरेज पावर कितना होगा, वह होगा कि जो पीक वैल्यू इसकी थी उसका स्क्वायर इंटू आर बाई 2। अब हमको ये एवरेज पावर की बात हुई। अब हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर अगर हम इसके प्लेस में जो अभी जो पावर निकालने में हमने जो AC लिया है, मतलब वेरिएबल करंट लिया है, अगर कोई कांस्टेंट करंट लिया जाए तब तो पावर की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर आर ही होगा ना, क्योंकि आई कांस्टेंट अगर लिया जाए, मतलब जस्ट लाइक वी कैन से दैट एक DC लिया जाए, कांस्टेंट करंट लिया जाए, तब पावर यही होगा। और जितनी पावर यहाँ हुई है उसी रेसिस्टेंस में ली जिसमें हम AC को लिए थे, और ऐसा हम कांस्टेंट करंट सिलेक्ट किया है जो सेम पावर प्रोड्यूस किया है, जिस एवरेज पावर इक्वल है। तो अगर तो इसका मतलब हुआ कि आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2r एंड देन दी आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। तो ये जो रिलेशन हमें बता रहा है, ये जो रिलेशन बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर हम ये जो I है ये वैसा कांस्टेंट करंट है जिसे अगर फ्लो कराया जाए तो सेम हीटिंग इफेक्ट अगर देता है उतने ही टाइम में, तो दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू। क्या होगा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और चूंकि यहाँ जो इफेक्टिव वैल्यू है, जब हमने पावर कैलकुलेट
किया था एवरेज, याद होगा, तो मैंने क्या लिखा था कि इसका स्क्वायर किया पहले आई स्क्वायर, और ये वेरिएबल है तो जिसका मैंने एवरेज निकाला था। तो किसका मीन निकाला जा रहा है? स्क्वायर का। तो मीन स्क्वायर, और फिर चूंकि ये स्क्वायर का मीन है और हमको इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए क्या करना होगा? रूट भी करना होगा। इसलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज RMS वैल्यू। thus we can say that IRMS इज इक्वल टू आई इफेक्टिव भी इसको कहेंगे, ये होगा पीक वैल्यू का √2 टाइम्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि RMS current is the equivalent to that current when it passes through a given resistance in time t will produce the same heat as produced in the same time in the same resistor by that AC। तो किसी भी AC से उतना ही हीट प्रोड्यूस होता है जितना वो करता है, तो उस इफेक्टिव, उसे हम इफेक्टिव वैल्यू कहेंगे। अब हम लोग अगर इफेक्टिव वोल्टेज की चर्चा करें तो इफेक्टिव वोल्टेज विल बी V इज इक्वल टू IR, एंड सो दिस इज द इफेक्टिव वोल्टेज। VRMS या इफेक्टिव वोल्टेज की बात करें तो ये होगा, इसकी इफेक्टिव वैल्यू है I0 बाई √2, और ये I0 R जो होगा वो पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, तो यहाँ भी हम यही रिलेशन मिलेगा VRMS के लिए। तो ये है इफेक्टिव वैल्यू। अब ये इफेक्टिव वैल्यू का सेंस हमारे लिए बहुत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमें कहीं ये कहा जाता है कि जैसे सपोज कर लीजिए हमारे जो डोमेस्टिक सप्लाई है, वो डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट का है और 50 हर्ट्ज का है। ये सप्लाई है हमारे देश में, जो सप्लाई होता है कमर्शियल सप्लाई, ये 220 वोल्ट। और ये जो अगर हमारे पास AC इस फॉर्म में है तो ये जो वोल्टेज है ये हमारा पीक वोल्टेज है। पीक वोल्टेज है मीन्स हमारे पास V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी में ये वैल्यू हमारा V0 है, पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू हमारे पास है। ये नहीं लिखा होता है क्योंकि हमको इससे क्या मतलब है, हमारा इफेक्टिव कितना है उसे मतलब है। तो दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू। यानी अगर हमको कहता है कि ये क्या है तो VRMS इज 220, तो 220 इज इक्वल टू V0 बाई √2। सो V0 इज इक्वल टू 220 इंटू √2। अगर आप इसको 220 इंटू 1.41 से करेंगे तो लगभग 3 मेरे ख्याल से 311 के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में जो उसकी पीक वैल्यू है इतना है, लेकिन हम उसको इफेक्टिव वैल्यू कितना बोलते हैं, 220 बोलते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है दोनों में। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे इसको अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सपेंड करना चाहें तो I इज इक्वल टू ऐसा कर सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 बाई √2। इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर ले ऊपर नीचे, तो ये होगा √2 I0 बाई 2, 1.414 बाई 2 I0, ये होगा 0.707 I0। तो ये वैल्यू है एक्चुअली में 0.0707 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू होता है, यानी ये आसपास में यहाँ होगा। तो ये हमारा इफेक्टिव वैल्यू है जो कम होता है। तो इसलिए हमारी इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है कि वो हमें हीट कितना प्रोड्यूस करके देगा, वही उसका इफेक्टिव वैल्यू कहलाता है। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड मेजर करने के लिए होता है AC करंट या वोल्टेज को, वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए वो इफेक्टिव वैल्यू हमको यही देगा। तो जहाँ भी लिखा हो देखते हैं, इसका मतलब वोल्टेज भी हो चाहे करंट भी हो, वो पीक वैल्यू का √2 टाइम्स होता है।